Okay, let's start with this first question. You have a ketone and aldehyde reacting with PCl5 followed with sodamide, methyl iodide, and giving the final product. We have to identify the moles of X and Y consumed. So, what is the reaction of carbonyl with PCl5 in general? So geminal dichloride. Yeah, it converts the aldehyde or ketone, meaning a carbonyl group, into the geminal dihalide. So the general reaction is when a carbonyl reacts with PCl5, similar to alcohol, it eliminates the POCl3, the phosphoryl chloride, and the 2-chlorine gets added to the carbon atom, giving you a geminal dihalide. And this is valid for both aldehydes and ketones. So in the first step, how many moles of PCl5 will be consumed? 2. 2, because both the aldehyde and ketone will be reacting. And the product which we get in the first step will be a cyclohexane ring with a geminal dichloro at the top, and there is a CH2, then CHCl2. Okay, so this is actually a terminal geminal dihalide, and this will be a non-terminal geminal dihalide. Now next, what will NaNH2 do to the geminal dihalide? So alkyne का reaction. Alkyne Redo. reaction. It's a double E2 or double elimination reaction. But in case of the first dichloro, the non-terminal one, will we get an alkyne with a triple bond in the ring? जो अल्काइन का No. रिएक्शन है, अगर मुझे ऊपर वाले डाइहैलाइड में करना है, विल आई बी एबल टू डू दैट? No. नो. सो एक्चुअली एक सिंगल एलिमिनेशन होगा जहां पर यू विल गेट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम विथ वन क्लोरो इंटेक्ट, एक विनाइलिक हैलाइड मिल जाएगा, एंड नीचे वाला जो डाइहैलाइड है दैट कैन कंज्यूम 2 moles of NaNH2 and can convert into an alkyne which is C triple bond C and a H. A terminal alkyne could be generated. Correct. So how many moles total are consumed till now? 3. One for the above and two for the below geminal dihalide. But now we have got a terminal geminal dihalide. Does it react with NaNH2? Terminal alkynes are acidic and do not undergo BTLC. That's a statement you should always remember. And the terminal alkyne being acidic can react with a base. So this will further convert into C minus and Na plus, consuming one more mole of NaNH2. And then if you remember a famous reaction of a terminal alkyne getting converted into a non-terminal alkyne, जहां पर first terminal alkyne is treated with NaNH2 to form the acetylate salt and then further reacted with an alkyl halide, जहां पर Na plus replaces that alkyl, the alkyl replaces Na plus and converts it into a non-terminal alkyne. So actually, the number of moles of NaNH2 consumed will be 1 for this geminal dihalide, 2 for this to convert into alkyne, and one more for converting the terminal alkyne into a salt. इस टाइप का एक पीवाईक्यू भी आ चुका है जहां पर NaNH2 के मोल्स पूछे गए थे. So whenever there is a geminal dihalide reacting with NaNH2, giving a terminal alkyne, it will consume one more mole of NaNH2 to convert into the acetylate salt. It will not stop at the neutral alkyne, it will form the salt. So Y will be 4, and we have got this desired product which is verified through the sequence, and that's why the number of moles of X and Y total will be 6. Clear with these two reactions? Next, what is the maximum number of products, including stereoisomers?
Remember, including stereoisomers, meaning you have to consider the geometrical, optical, total isomers. When halogen compound 2R, 3R, which is 2-chloro-3-phenyl-butane, undergo the hydrolysis. Now, even if it is not mentioned SN1, the hydrolysis, solvolysis always follows the SN1 mechanism. So I have a butane chain with a chloro at second and a phenyl at third. Satisfy the valency. This will be H3, H, H, and H3. Both are chiral carbons. So 2 pair, this is R configuration, and 3 pair, this is also the R configuration. This is what the structural formula would be. Now hydrolysis meaning just add with water. Which mechanism? SN1. Correct? Now for SN1, you have to follow. What is the first step? Protonation. Protonations. Not protonation. यहाँ प्रोटोनेशन नहीं होता है. फर्स्ट स्टेप इज लीविंग ग्रुप एलिमिनेशन टू फॉर्म अ कार्बोकटायन. अल्कोहल में प्रोटोनेशन होता है, हेलाइड में नहीं. हेलाइड में ये तो अच्छा बच्चा है तो इट विल जस्ट लीव इजीली, एंड विद द लीविंग ग्रुप गेटिंग एलिमिनेटेड इट विल फॉर्म अ कार्बोकटायन. सो यहाँ पर एक प्लेनार कार्बन मिल जाएगा. देन वंस यू हैव कार्बोकटायन यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ carbocation, you should think of Rearrangement. rearrangement. So it will rearrange via Hydride shift. hydride shift to form what type of carbocation? Tertiary. Be specific. Tertiary benzyl. Tertiary benzyl. So it's a very stable carbocation because it has been upgraded from a 2-degree alkyl carbocation into a 3-degree benzyl carbocation. And the next step will be attack of the nucleophile. Water is a weak nucleophile followed by deprotonation. तो यहाँ पर finally we will get a structure which is CH3, CH2, C पे we have OH and CH3 along with pH. Is this carbon chiral? Yes. मिथाइल फिनाइल, ऑफ कोर्स ये वाला कार्बन कायरल है, मतलब इसका 2 स्टीरियोइसोमर्स बनेगा. करेक्ट. Now when they say maximum number of products, मतलब we have to consider all the possible products. All possible मतलब ये वाला 2-degree alkyl से भी अगर if I attack the nucleophile and deprotonate, I would have got the structure as CH3, CH पे OH, CH पे pH and CH3. जिसका यहाँ पर this R configuration is fixed because it is not involved in the reaction. But this particular carbon, through the attack of the nucleophile, can give me how many possible stereoisomers? If the carbocation is attacked by the nucleophile, the attack can take place from both the sides. अरे हाँ कि Yes. नहीं? मतलब यहाँ पर अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन था और इसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल वाया SN1 अटैक कर रहा है, देन दिस पर्टिकुलर कार्बन एट द फाइनल प्रोडक्ट विल बी R और S, मीनिंग 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर. यानी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर मिलेगा दैट विल बी R विद द फिक्स्ड R एंड S with the fixed R. This is very important to understand. This R of the phenyl wala chiral carbon is a fixed configuration. ये ऑप्टिकली प्योर बोल सकते हैं. बट ये वाला जो R है that has got affected in the SN1. So this chiral now will have 2 possible configuration, R as well as S. तो यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे एंड दोनों एक दूसरे के क्या है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. सो दे आर एक दूसरे का
RR because Diastereomer. R. So that is what the diastereomer का concept was. एक configuration अगर fix रहता है, so वो एक दूसरे के हो जाएंगे diastereomers. तो ये दो प्रोडक्ट्स हो गए, और जो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है उसमें एक ही कायरल था, मतलब उसका R और S हो सकता है। सो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे के R एंड S, तो वो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हो गए। ऐसा रिलेशन भी पूछ सकते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दो डायस्टीरियोमर्स, दो इनेंशियोमर्स, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल विल बी 4। आर यू क्लियर विद दिस एंटायर कॉन्सेप्ट? यस एवरीवन? Yes. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान रखना, इफ यू हैव टू chiral carbons at the start and one has a fixed configuration which is not affected in the SN mechanism, then the final product will always be diastereomer, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहता है और दूसरे का R या S आ गया है। नेक्स्ट, I have cumene undergoing bromination in HNO, where the Br will get substituted. Benzylic carbon. Yes, because this is what type of mechanism? Bromine FSR. HNO, FSR. So FSR मतलब stability of free radical सोचेंगे। So cumene का जो benzylic carbon है, that H will be substituted by Br. And then you have methanol. Which reaction? बोलो mechanism. SN. 1. SN. 1. Correct. This is solvolysis only ना। याद रखना, अगर एरो पे मिथेनॉल हो, वाटर हो, या फिर एसिटिक एसिड हो, बेसिकली ये तीनों पीपीएस है। एंड मैंने बोला था जस्ट पीपीएस अगर एरो पे है, दैट विल इंप्लाई सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन, और सॉल्वोलाइसिस ऑलवेज फॉलो द SN1 मैकेनिज्म। तो अब इस केस में कार्बोकटाइन बेंजाइलिक ही है, मतलब कोई रीअरेंजमेंट का स्कोप है नहीं, खाली Br उड़ाओ एंड OCH से लगाओ। दिस इज एक्चुअली ईथर फॉर्मेशन रिएक्शन along with the byproduct of HBr। अब दूसरे केस में ब्रोमीन Fe, अब इसमें क्या फर्क है? व्हाट विल हैपन विथ Br to Fe? Shan. शान रिएक्शन, एंड क्यूमीन इज ओपी डायरेक्टिंग, तो यहां पर ब्रोमीन पैरा पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो दिस मैकेनिज्म इज द FSR radical substitution, and the below reaction is the Shan, that is ESR। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब उसके बाद अगर मिथेनॉल है, विच रिएक्शन? No reaction. करेक्ट, बिकॉज अब ये तो वाह वाला हो गया, और वाह तो यूजलेस है, विनाइल अराइल। मतलब दिस सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल नॉट बी पॉसिबल। दैट्स व्हाई देयर विल बी नो पॉसिबल रिएक्शन ओवर हियर, सोल्यूशन बी बन ही नहीं पाएगा। अब पूछा है दोनों में से कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है। अब फर्स्ट वाले में यू हैव एन ईथर विच इज एन इनर्ट कंपाउंड। Acidic solution, what they are referring to is with respect to the hydrobromic acid which is formed in the solution A। तो B तो वैसे भी रूल्ड आउट था, तो या तो नन हो सकता है या तो A हो सकता है। A में ये वाला HBr will make the solution acidic with the pH less than 7, and that is why A only will be the answer। The two important concepts to understand: FSR is via the stability of the free radical, ESR is based on the Shan concept. So, Hmm. on the second reaction, when there's Br to Fe happening, so the H plus will also be lost from the benzene ring, right? Which will go with the Br minus. Yes. So wouldn't that also give us HBr? But then this methanol solution is not reacting.
हाँ मतलब अगर सोल्यूशन बी तक पहुंचेगा तो उसमें मिथेनॉल भी रहेगा और HBr भी रहेगा एंड दिस प्रोडक्ट विल बी देयर. So basically it will be this product along with methanol and HBr. अब is there any reaction happening between methanol and HBr? So Yes. bromonium and methoxide. Lucas. हाँ ल्यूकस वाला रिएक्शन हो जाएगा. ऑफ कोर्स द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी वेरी स्लो. सो ये मिथाइल ब्रोमाइड और वाटर बन जाएगा. अब Yes. सोल्यूशन में कोई एसिडिटी है क्या? Nice. नहीं. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये मिथेनॉल जो सोल्यूशन में था वो HBr के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बन जाएगा. Got it. Solvolysis of the optically active compound X gives mainly. Now, what is OTS? Tosyl. Tosyl. So, tosyl chloride is very important reagent. It is simply the toluene sulfonyl chloride. मतलब you have a CH3 at the para and S double bond O Cl. A similar reagent हमने कहाँ देखा है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ये विदाउट द मीनिंग. Hinsberg. हिंसबर्ग रिएजेंट ही है ये. ठीक है. एंड रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ टोसाइल क्लोराइड. इफ यू हैव एन अल्कोहल एंड यू रिएक्ट विद TSCl, HCl निकल के ROTS बन जाएगा. अब वी नो अबाउट अल्कोहल दैट इट्स अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप. बट OTS जो है दैट इज एक्चुअली OSO2 विद अ पीएच. ऑफकोर्स अगर मीथाइल से सब्स्टिट्यूटेड होगा तो वो टोसाइल है. पूरा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. सो OSO2 बेंजीन विद द मीथाइल. This is basically the tosylation reaction. And this group is a very, 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 very good living group. So tosylation is a process which converts a poor living group into a good living group. अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है. एंड ACOK ACOH, what reagent is this? AC abbreviation stands for acyl ना, acetyl. तो ACOK is acetic acid and potassium acetate. तो जस्ट PPS वाला केस हो गया ये, विच इज सॉल्वोलाइसिस. वो तो दिया हुआ ही है. और सॉल्वोलाइसिस मतलब SN1 मैकेनिज्म करेगा. अब यहां पर एक कैच है और एक कॉन्सेप्ट है. ध्यान दो. लेट्स से एक बहुत सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं पहले. यू हैव अ बेंजीन रिंग एंड यू हैव CH2 and a halide over here which is a good living group, and there is a OH minus. कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा यहां पर? So SNNGP. करेक्ट. मतलब आइडियली NGP का कॉन्सेप्ट अगर ना पता हो तो आप बोलोगे SN2. और SN2 में क्या होगा? खाली Cl निकालना है, OH लगाना है, एंड यू वुड हैव गॉट द प्रोडक्ट विथ द OH सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ द Cl. अब यहां पर अगर मैं ये कार्बन को रेडियो एक्टिव कार्बन 14 मान लूं, ये 14 वाला कार्बन OH के साथ आएगा. दिस विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. बट इन रियलिटी यहां पर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं. एक ये वाला और दूसरा जहां पर यू हैव द सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन्स बट नाउ द C14 इज प्रेजेंट हियर. और ये दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है. अब क्यों बनता है उसके लिए लेट्स अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द SNNGP mechanism, which is a nucleophilic substitution via the neighboring group participation reaction. Neighboring group participation. अब इसका एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं. मान लो आपके पास CH2 और OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और यहां पर OMe का एक ग्रुप है मिथॉक्सी. एंड आपने एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट किया. अगेन यहां पर एक कार्बन 14 है.
तो ये वही अरेंजमेंट है, खाली मैंने यहाँ मिथॉक्सी ले लिया है। तो theoretically OTS will get substituted by OH SN2 mechanism and the product will be simply ये same chain with the OH। बट होता क्या है यहाँ पर, ये जो OTS है वो तो निकल जाएगा, बट along with that एक इंटरमीडिएट मैकेनिज्म यहाँ पर फेवर करता है, जिसमें लेट्स से ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और बीटा पे एक हेटेरो एटम है विच इज हैविंग अ लोन पेयर। नाउ ये जो लोन पेयर है दैट ऑन द ऑक्सीजन और एनी हेटेरो एटम विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक एटम, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और हमें पता है जो अपना अल्फा कार्बन है ऑन द गुड लिविंग ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है E+। तो यहां पर बिकॉज देर इज अ न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट विद इन द स्ट्रक्चर, दिस कैन एक्ट एज अ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। और ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये अटैक कर सकता है ये C14 को यानी अल्फा कार्बन को, एंड इट कैन किक आउट द लिविंग ग्रुप एज इट्स ऑलरेडी अ गुड लिविंग ग्रुप, दस फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट। कैसा इंटरमीडिएट दिखेगा, यहां पर CH2 CH2 एंड उस पे देर इज OMe विच अटैक्स ऑन द अल्फा कार्बन। तो ये ऑक्सीजन के थ्रू इस तरह से अटैक कर लेगा, एंड दिस ऑक्सीजन विल हैव वन लोन पेयर एंड अ पॉजिटिव चार्ज, एक ऑक्सोनियम इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहां पर दिस विल बी अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल OH-। अब ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के दो पॉसिबल केसेस हैं ऑन बोथ द कार्बन, क्योंकि दोनों कार्बन CH2 वाले ही हैं। बट हमने यहां पर क्या किया है, जो OMe के साथ कार्बन है वो वाला मेरा नॉर्मल कार्बन था और ये C14 था। अब जब OH यहां से अटैक करेगा, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड विल ब्रेक एंड द रिंग विल ओपन अप, एंड जब ये वाले से अटैक करेगा तो यहां से रिंग ओपन होगा। मतलब जब रिंग ओपन होगा तो दिस CH2 कार्बन विद द OMe विल बी बॉन्डेड विद CH2 एंड OH, ये C14 वाला, एंड अदर वे राउंड ये जो CH2 CH2 OH है ये वाला C14 यहां पर भी हो सकता है, यानी दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये होता है SN-NGP मैकेनिज्म, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो SN-NGP कब कब ध्यान रखना है, तो अगर ये वाला रिएक्शन देखो तो इसका भी एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, जिसमें ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और बीटा पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड अल्कीन वाला या डबल बॉन्ड का बेंजीन है, जो कि मेरा एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट करके यहां अटैक हो जाएंगे अल्फा पे, और ये लीव कर लेगा। तो यहां का जो एक इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल बी बेंजीन, जिसके ये पाई बॉन्ड्स इस तरह से हैं, यहां पर प्लस है, यहां पे एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें ये वाला कार्बन लेट से स्टार मार्क्ड कार्बन है। अब जब OH- अटैक करने आएगा तो दो बॉन्ड ब्रेकडाउन हो सकते हैं फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट, hence giving you a C14 bonded with OH or away from the OH. That is the NJP का कॉन्सेप्ट। तो इन शॉर्ट जेई के लिए एक PYQ में इस NGP कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, दैट इज द रीजन आई हैव टेकन अप ओवर हियर। SN-NGP कब कब सोचना है उसका ये समरी है। पॉइंट 1, फर्स्ट ऑफ ऑल SN-NGP को एंकीमेरिक असिस्टेंस या इंट्रामोलिकुलर असिस्टेंस भी बोलते हैं, और उसके कंडीशंस क्या है। फर्स्ट ऑफ कोर्स वी मस्ट हैव अ गुड लिविंग ग्रुप लाइक द हैलाइड्स, द OTS द टोसाइलेट, और द OSO2Cl जो कि अपना हिंसबर्ग जैसा स्ट्रक्चर होगा। मतलब इस तरह के गुड लिविंग ग्रुप्स अगर रहेंगे तो सबसे पहले आपका SN-NGP का पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। नेबरिंग ग्रुप Ng मस्ट हैव अ लोन पेयर, लोन पेयर ऑन अ हेटेरो एटम लाइक NOS नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर एटम, जो कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं लाइक द बेंजीन और अ डबल बॉन्डेड अल्कीन। तो
एक केस में मैंने आपको हेटेरो एटम का एग्जाम्पल बताया जिसमें ऑक्सीजन पे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक लोन पेयर था, और दूसरे में बेंजीन वाला पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल बताया। फिर एनजी जनरली इज एट बीटा गामा या डेल्टा पोजीशन, अल्फा पे नहीं, बीटा गामा या डेल्टा, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू अल्फा कार्बन टू फॉर्म अ साइक्लिक 3 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड इंटरमीडिएट, increasing the relative rate multifold times. Now, what is the main application? ये समझो। नीचे मैंने एक सिंपल एन प्रोपाइल क्लोराइड दिया हुआ है विथ हाइड्रोलिसिस, एंड ये एन प्रोपाइल अल्कोहल बना रहा है। ये अपना नॉर्मल SN2 मैकेनिज्म है। अब इसी में मैंने इस कार्बन पे, जो कि मेरा बीटा पोजीशन है, वहां पर एक SPH वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसका जब हाइड्रोलिसिस है, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, बट अगर ऊपर वाला SN2 का रिलेटिव रेट 1 है, तो ये वाला रेट ऑलमोस्ट 600 टाइम्स फास्ट हो जाता है। मतलब SNNGP का कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन मल्टीफोल्ड टाइम्स, 600 800 1000 टाइम्स फास्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट साइक्लिक 3 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड इंटरमीडिएट। तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू, टू केसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। पहला तो ये वाला एग्जाम्पल है जिसमें एक लीविंग ग्रुप है, उसका अल्फा बीटा, बीटा के ऊपर आपके पास एक NOS वाला ग्रुप है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर। तो मैंने OMe ग्रुप दिया, SPH दिया, वैसे NHMe हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी ऐसा ग्रुप हो सकता है। लेट मी राइट, इट कैन बी OMe, SPH या फिर NHMe, NHPH, कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन में। सब में कॉमन क्या है? आपका लोन पेयर ऑन द हेटेरो एटम। एम आई क्लियर ऑन दैट? और यहां पर ऑफ कोर्स एक गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द NGP। ठीक है, NGP के ये दो केसेस जो है उसका एक समरी मैंने बना दिया है NGP कंडीशन का। ये आपका यहां पर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर देगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. तो अब अगर पीछे जाते हैं, ये नॉर्मल SN1 लगता है क्योंकि लिविंग ग्रुप निकलेगा, उसके बाद कार्बोकैटायन बनेगा, एंड रीअरेंज करने पर यू विल गेट अ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, एंड देन द CH3COOAC एक्चुअली अटैच होना चाहिए इस पर्टिकुलर कार्बन पे। नाउ चेक द ऑप्शंस। In none of the option, you are actually having the OAC group on the benzylic carbon. इस कार्बन पे आना चाहिए था। डू यू ऑल अग्री? बट जो OAC ग्रुप है वो डायरेक्टली OTS की जगह पे ही लगा है, मतलब एक्चुअली ये SN1 नहीं है। तो ऑप्शन आपको ये बता देगा कि SN1 नहीं है। अब आप देखोगे क्लियरली तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और बीटा पे मेरे पास ये डबल बॉन्ड है जो कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये SNNGP का केस हो गया। एंड विथ SNNGP जो OAC है वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे यानी अल्फा कार्बन पे फ्रंट और बैक दोनों से अटैक कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली, meaning optically active enantiomers 50% each, and final SN1 के जैसा जैसे रेसमिक मिक्सचर बनता है, it will give you a racemic mixture which is overall optically inactive। ये सिमिलर एग्जांपल है, खाली अल्फा पे आप मीथाइल को सब्स्टिट्यूट कर लो, बीटा पे मीथाइल सब्स्टिट्यूट कर लो, एंड यू हैव द सेम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। डू यू ऑल अग्री? हेलो?
सर तो SN NGP का ये दो ही एग्जाम्पल है जो आप ध्यान रखोगे, जो मैंने यहां पर जनरलाइज किया है। जस्ट राइट दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही बार आया था PYQ के फॉर्म में। NGP concept not that important for mains, but since one time it was asked, I've just summarized here NGP case. NG must be एंटी पेरिप्लेनार, मतलब अल्फा पे जो Cl है और बीटा पे जो ग्रुप है, नेबरिंग ग्रुप, इसी को आप नेबरिंग ग्रुप बोलते हो, वो एंटी पेरिप्लेनार होना चाहिए, मतलब शुड बी 180 डिग्री। तो इसका आप कॉन्फॉर्मर बनाओगे न्यूमेंस प्रोजेक्शन के फॉर्म में, तो ये दोनों ग्रुप आमने सामने होने चाहिए, लाइक दिस। If your Lg, the good living group chlorine, is here, your Ng should be here. This is what anti-periplanar means. Right? Chalo, next. Which reaction to think here? R. स्नार मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन ये है कि विच पर्टिकुलर हैलाइड विल गेट सब्स्टिट्यूटेड, Br और F, Bromine. and why? So carbon is stabilized by resonance at para. Correct. A strong EWG like nitro, स्नार में सबसे इंपॉर्टेंट था, द रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। और जो EWG है, दैट कैन स्टेबलाइज द कार्बोनाइन एट द ऑर्थो एंड पैरा, एंड दैट इज व्हाई दिस Br कैन बी किक्ड आउट इजीली एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय द OH। नाउ यहां पर दो इन स्नार द फ्लोराइड हैज हाई रिएक्टिविटी देन द क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, मतलब इस केस में फ्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। स्टिल द इंटरमीडिएट कार्बोनाइन जो नाइट्रो से स्टेबलाइज हो रहा है, वो ब्रोमीन वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, एंड दैट इज व्हाई द रिएक्टिविटी विल नॉट बी द इंपॉर्टेंट केस, बट जो कार्बोनाइन RDS स्टेप है वो आपका मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी B. Next is the product which results from anti-periplanar elimination. Anti-periplanar elimination means which elimination? E2 को एक नाम दिया था, if you remember. Trans elimination. ट्रांस एलिमिनेशन। ट्रांस का मतलब ही था जो अल्फा पे लीविंग ग्रुप है और बीटा पे H है, वो एक दूसरे से ऑपोजिट होने चाहिए। अभी तो SN NGP में बताया, उसी को आप ट्रांस एलिमिनेशन बोलते हो, उसी को एंटी पेरिप्लेनार एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इट मीन्स द सेम। अब ऑन पाइरोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग सल्फोनेट एस्टर ऑफ मेंथॉल, पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली सल्फोनेट एस्टर ऑफ मेंथॉल है, बट ठीक है। अब डू यू सी समथिंग स्पेशल विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ओवर हियर? So OTS type. यस, OTS टाइप मतलब अ गुड लिविंग ग्रुप इज एक्चुअली प्रेजेंट। तो ये पूरा जो पार्ट है, इट्स एन एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है, मतलब ये आप एज गुड एज हेलाइड मान लो। अब E2 एलिमिनेशन करना है तो ये आपका अल्फा मान लेते हैं। तो अब बीटा पे और यहां बीटा पे H एलिमिनेशन हो सकता है। अब कैन यू डू द एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉटम? नो ट्रांस एलिमिनेशन का मतलब अल्फा पे अगर लिविंग ग्रुप और बीटा पे H है, वो एक दूसरे से ऑपोजिट होने चाहिए। तो अल्फा पे तो लिविंग ग्रुप आपका डार्क वेज पे है, तो बीटा पे H कौन से वेज पे होना चाहिए? Dash. डैश।
यानी बॉटम बीटा एच एलिमिनेट नहीं हो सकता, दिस इज रूल्ड आउट। ऊपर वाला बीटा जो है उसमें दोनों एच है, एक डार्क पे बना दो एक डैश पे बना दो, तो दिस सेटिस्फाइज द रिक्वायर्ड कंडीशन। मतलब इस केस में जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों कार्बन्स पे बनेगा, एंड दैट इज व्हाई द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड विल बी द ऑप्शन बी। So this gives you the concept of E2 elimination. Which carbocations do not undergo rearrangement to give a major product? किसका rearrangement नहीं होगा? B. B. Because this is already a very stable resonance case, which is A sigma B, A पे plus, B पे lone pair या negative, a very stable resonance. So of course ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो इसका कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट में इट कैन रीअरेंज टू फॉर्म एन अलाइलिक कार्बोकेटाइन, सेकेंड में रीअरेंज करके ये सिमिलर टाइप का कार्बोकेटाइन बन सकता है, डी में रीअरेंज करके इट कैन गिव यू अ वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन कॉल्ड साइक्लोप्रोपाइल अल्काइल कार्बोकेटाइन, जो बावा का भी बाप है। करेक्ट। बेंजाइल से और ज्यादा स्टेबल ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम से भी ज्यादा स्टेबल ये है, एंड दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड और डांसिंग रेजोनेंस। तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी SN1 रिलेटेड कॉन्सेप्ट या E1 रिलेटेड कॉन्सेप्ट, दोनों में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट। Next, you are given a substrate and SN1 plus E1 products. Considering products including stereoisomers, find the value of X. मतलब you have to find all the possible structures including the stereoisomers. और यहाँ पर SN1 E1 दोनों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। Let's start with the first part. SN1 हो या E1 हो, दोनों केस में पहला स्टेप First step is carbocation formation, and then you will think about the rearrangement, which of course here will form the stable benzylic carbocation. अब अगर SN1 सोचते हैं तो दिस विल बी अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, तो कोई न्यूक्लियोफाइल दिया नहीं है, तो यहाँ पर NU ले लेते हैं, and it will form CH with a NU and a CH3. ना कार्बोकटाइन के बाद अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये काइरल सेंटर है, मतलब यहाँ के दो प्रोडक्ट्स बनेंगे R एंड S। फिर अगर E1 सोचते हैं, ये मैंने SN1 सोचा, अब E1 से आपका मेजर प्रोडक्ट विल बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड बीटा कार्बन। अब जैसे ही वहां से एलिमिनेशन होता है, आर यू गेटिंग एनी स्टीरियोआइसोमर? डबल बॉन्ड कार्बन H and PH, H and methyl, they are different on both the sides, मतलब you'll get cis and trans। तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमर का कॉन्सेप्ट कवर्ड, ये दो आइसोमर्स, एंड प्लस एक माइनर हॉफमैन्स प्रोडक्ट भी बनेगा। जो ऊपर वाला है वो सेट्जेप प्रोडक्ट है और ये वाला हॉफमैन्स है, और टर्मिनल अल्कीन तो कभी भी GI शो नहीं करता है, तो इसका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। एम आई ऑडिबल एवरीवन? हेलो? हेलो? यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है। और यहां पर भी अगर SN1 न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दे तो it will form PHCH with a NU and a CH2CH3, which is again giving you a chiral center, and that's why there will be two stereoisomers.
एंड इसका E1 करवाए तो एक ही एलिमिनेशन होगा एंड दैट विल बी द PHCH डबल बॉन्ड CH विद CH3। बट ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी आ चुका है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अ रिपीटेड प्रोडक्ट। तो सारे प्रोडक्ट्स को अगर काउंट करें तो दिस इज 2, 4, 5 एंड 2, 7 will be the value of X, including all the stereoisomers, optical, geometrical both. समझा? Number of diastereomeric pairs formed in the product B are diastereomer कितने बनेंगे? That is the question. So first step, there is an alcohol H plus heat. Which mechanism to follow? E1. E1. And do you see something else happening in this reaction? Rom. Rom. Rom नहीं होगा रे, Ring expansion. Yes, expansion. sir. I meant that. इपॉक्साइड में रॉम होता है, हाँ आई अंडरस्टूड। बट यहाँ पे ये एग्जाम्पल अगर देखोगे, इफ यू हैव 5 मेंबर्ड रिंग विद अ कार्बोकेटाइन एंड 2 मिथाइल, इसका मैंने डायरेक्ट बोला था आपको, याद रख सकते हो। इट विल गिव यू अ 6 मेंबर्ड रिंग विद 2 मिथाइल्स आजू बाजू। फिर भी चलो रिंग एक्सपांशन बता देता हूं। तो ये आपका 1, 2, 3, ये टूटेगा, ये जुड़ेगा एंड इट विल फॉर्म अ 6 मेंबर्ड रिंग with 2 methyls and the plus. And then it will further rearrange to form a carbocation with 2 methyls and a plus here. So protonation, carbocation, ring expansion, then the methyl shift and deprotonation. तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा on heating H plus via E1, you will get the famous 6 membered ring with double bond methyl आजू बाजू। अब यहाँ पर HBr CCl4 addition via MR. Of course, direct MR dangerous, so again you will follow the U-shaped mechanism. But यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनने वाला है, that is anyway stable, and you will get the Br over here. तो प्रोडक्ट तक पहुंच गए, this is your product B. How many diastereomeric pairs will be formed? What's the thought process applicable here? How many chiral centers are generated in the final product B? 2. 2. अब 2 नए chiral center जनरेट हुए हैं, इसका मतलब you can have 4 possible stereoisomers, RR, RS, SR and SS। अब उनमें डाइस्टीरियोमर के पैर कितने हैं? 2। एंड विच आर दे? पेयर्स ऑफ डाइस्टीरियोमर, 2 कौन से? RSSR. तो RR के साथ RS, RR के साथ SR, ये 2 ही बनेंगे। नहीं, नहीं, 4. 4 बनेंगे क्योंकि SS के साथ RS और SS के साथ SR, हर एक में एक कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रह रहा है। राइट। So this is how the diastereomers are found. So this is a concept of 2 chiral centers without any symmetry. You can have 4 diastereomers possible or diastereomeric pairs possible. अगर ये सिमेट्री वाला केस होता तो RS और SR इक्वल हो जाता, तो उस केस में यू वुड हैव काउंटेड एज ओनली 2 आइसोमर्स। बट ये सिमेट्री वाला केस नहीं है, ये 2 chiral centers with no pause
नो सिमेट्री केस है. That's why So answer can will be you 4. Hmm. so can you like explain the difference between diastereomers and diastereomic pairs like? डायस्टीरियोमर्स मतलब ये एक डायस्टीरियोमेरिक पेयर है, मतलब आर आर एंड आर एस एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है. ये वन पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स है. Yeah, समझा? but ये no, like दूसरा पेयर. बोल बोल. no, got it, got it. Diastereomers is always in the form of pairs only, right? Yeah, no, I got confused with something else. Huh. They are a pair of isomers in which one chiral configuration is fixed and one changes. तो डायस्टीरियोमर्स हमेशा पेयर्स में ही होते हैं. तो यहाँ कितने डायस्टीरियोमर्स पेयर्स के फॉर्म में होंगे वो पूछा था, तो आंसर 4 होगा. गॉट इट? हाय, क्लियर? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना. You have an unsaturated cyclohexene with a OH and heat with H2SO4 giving you A and water. Which of the following product is product A in the above reaction? Now, generally, when you have alkene and alcohol together and protonation होना है तो दोनों protonate कर सकते हैं, and both on protonation gives you a carbocation. Which protonation is favorable, alkene or alcohol? जेई में ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, मैंने डिस्कस किया हुआ है. अल्कीन वर्सेस अल्कोहल, विच विल गेट प्रोटोनेटेड So you फर्स्ट? said look at the product. करेक्ट. अच्छा, जनरली अगर मैं पूछूं बिना प्रोडक्ट देखे तो क्या केस होना चाहिए? विच इज मोर फेवरेबल, मोर न्यूक्लियोफिलिक? Alcohol. ना. अगर अल्कीन वर्सेस अल्कोहल है तो अल्कीन का प्रोटोनेशन फेवरेबल है. अब ऑफ कोर्स प्रोडक्ट देखने के लिए बोला था बिकॉज अगर आपके पास दो केस है, जैसे अब यहां पे if your alcohol is getting protonated first, then the OH is not a part of the reaction because वो लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल चुका है. अब प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन मिसिंग होगा, मतलब यहां पर वी हैव टू थिंक ऑफ द OH गेटिंग प्रोटोनेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अल्कीन प्रोटोनेट होता है वर्सेस अल्कोहल प्रोटोनेट होता है तो क्या फर्क है? अल्कोहल अगर प्रोटोनेट होगा तो ऑक्सीजन will be lost and the product will not have oxygen atom. Very important, product will not have oxygen atom. तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट में नहीं है, इसका मतलब अल्कोहल का प्रोटोनेशन किया गया है. अल्कीन का अगर प्रोटोनेशन होता तो अब केस कैसा होता? यहां पे मान लो ये प्रोटोनेशन हुआ है, तो नाउ द OH विल एक्ट एज द इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और यहां पर अटैक करके एक ऑक्सीजन वाला ईथर रिंग बनाता, ईथर जैसा COC लिंकेज का. तो अगर अल्कीन प्रोटोनेट होता है देन द प्रोडक्ट विल हैव ऑक्सीजन इन द रिंग, फ्यूरान जैसा स्ट्रक्चर होता, ऑक्सीजन इन द रिंग. Observation, furan-like structure. This is very simple way to understand which will get protonate first. मान लो अगर दोनों ही दिए हैं, एक में ऑक्सीजन दिया है एक में ऑक्सीजन नहीं दिया है, तो उस केस में अल्कीन का फेवरेबिलिटी ज्यादा होता है बिकॉज दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, मोर फेवरेबल प्रोटोनेशन.
तो आपको प्रोडक्ट से समझ में आ जाएगा, वैसे सिंपल है, बट बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन मैंने दे दिया। तो अब यहां पर ऑप्शंस को देखो, एंड इफ यू सी देयर इज नो ऑक्सीजन एज अ पार्ट ऑफ द रिंग। ऑल्सो देयर इज वन मोर ऑब्जर्वेशन, हीट एंड H प्लस, मतलब इट इज इवन मैकेनिज्म, एंड इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसलिए वाटर लॉस हुआ है, देखो, मतलब ऑक्सीजन इज लॉस्ट इन द बाई प्रोडक्ट, मतलब ये आपका अल्कोहल का प्रोटोनेशन केस ही है। तो अब यहां पर अगर समझ चुका है, तो आपके पास एक साइक्लोहेक्सीन है, यहां पे OH है, एंड एक टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है। तो प्रोटोनेशन करने के बाद लेट मी डायरेक्टली राइट द कार्बोकटायन, तो ये कार्बोकटायन बना। इज देयर अ पॉसिबल रीअरेंजमेंट? सेकेंडरी अल्काइल बना है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यस। यस। तो एक मिथाइल जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड यू विल गेट अ कार्बोकटायन विच इज नाउ टर्शियरी। A 2-degree carbocation is now stabilized to a tertiary alkyl carbocation. अब इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज वेरी क्रूशियल, और मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड का शिफ्ट कैसे सिलेक्ट करना है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड बाय, मतलब ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा या टॉप टू बॉटम, हाउ डू यू डिसाइड, Bottom to top. एंड व्हाई? So like it'll be about a nucleophile 1 degree carbon ion. करेक्ट, मतलब कार्बोकटायन और कार्बनाइन दोनों बनेगा, तो नीचे अगर कार्बन पे प्लस है और ऊपर कार्बन पे माइनस है, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो द पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट विल नॉट बी दिस बट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, करेक्ट, एंड इन दैट केस दिस विल फॉर्म अ डेल्टा प्लस, that will form a delta minus. Now this delta minus will act as the nucleophile, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इधर और रिंग क्लोजर हो जाएगा, रिंग क्लोजर मैकेनिज्म। और कितने मेंबर्ड का रिंग बना? अब रिंग बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स होता है, उसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक दिया है मैंने। जस्ट नंबर द कार्बन्स, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखो कितना सिंपल है, आपका ये वाला रिंग है, उसके बाजू में एक 6 मेंबर्ड रिंग बना दो, जिसका ये कार्बन नंबर 1 है, और फिर ये 2, 3, 4, 5 और 6 है। तो 1 एंड 6 के बीच में रिएक्शन हुआ है। अब 2 वाले कार्बन पे यू हैव 2 मिथाइल्स, 3 पे देर इज 1 मिथाइल, 4 और 5 पे कुछ नहीं, और 6 पे भी कुछ नहीं, और पाई बॉन्ड टूट चुका है। और बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? 6 पे. 6 पे। एंड देन लास्ट स्टेप, अगर आप डीप्रोटोनेशन कर लेते हो, तो आपके पास बीटा लेफ्ट पे भी है, राइट पे भी है, और टॉप पे भी है, तो कहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा? 1 पे. 1 पे। एंड दैट्स व्हाई क्लियरली यू कैन सी द आंसर इज ऑप्शन बी। A very good question, PYQ related, with the concept of alkene and alcohol together in the reaction, and there is और a protonation happening. सर ऑप्शन ए ना, क्योंकि 2 पे दो मिथाइल हाँ, ग्रुप्स है। सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। 2 मिथाइल और 1 मिथाइल। हाँ, ये वाला 1 मिथाइल था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पहले आना चाहिए एडजेसेंट टू द रिंग। समझा? वापस बोल रहा हूं, PYQ हिंट, whenever you have alkene alcohol together, these two things are to be analyzed based on the product. अगर दोनों में ऐसे ऑप्शंस दिए हैं तो अल्कीन का फेवरेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगा, बिकॉज अल्कीन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन द अल्कोहल। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन a cyclic ring with the OH and a double bond CH2 is treated with H2SO4. Again, alkene and alcohol together,
और एरो पे प्रोटॉन है। अब क्या थॉट प्रोसेस होगा? विच विल सर गेट टॉप प्रोटोनेटेड? अब तो हिंट दे दिया ना मैंने। यस। अल्कोहल। तो अल्कोहल प्रोटोनेशन करना है, तो ऑक्सीजन विल नाउ लॉस्ट इन द बाई प्रोडक्ट। और अगर वो लॉस है तो फिर आपके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं दिखना चाहिए ना जमन। But then if the okay, yeah, sorry, sir. देख मैंने क्या लिखा है। प्रोडक्ट विल हैव ऑक्सीजन इन द रिंग, फ्यूरान लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है। एंड ऑक्सीजन विल बी लॉस्ट एंड प्रोडक्ट विल नॉट हैव ऑक्सीजन एटम। अगर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है ही नहीं तो अल्कोहल प्रोटोनेट हुआ है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में है वो छोड़ दो आप, बट ऑक्सीजन है, यानी ओ इज नॉट लॉस्ट। दैट्स वाई यहाँ पर द फेवरेबिलिटी ऑफ द प्रोटोनेशन विल बी फॉर द डबल बॉन्ड। तो ओ एच इंटेक्ट रख के यू विल गेट अ कार्बोकेटाइन हियर, टर्शियरी वाला। इज देयर अ रीअरेंजमेंट पॉसिबल हियर? Yes. एंड व्हाट रीअरेंजमेंट? So back bonding. करेक्ट। तो अगर आप यहां पर रीअरेंजमेंट करते हो, then the positive charge will now be on the carbon bonded with the OH, a beautiful very very stable resonance, back bonding वाला। अब ये ऑलरेडी अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? Deprotonation. And the deprotonation in this case will give you a Vinyl. ketone, मिथाइल वाला कीटोन दे रहा है, तो नॉट मिथाइल कीटोन, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड कीटोन। समझा? ये भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है, और ये दोनों एग्जाम्पल मैंने साथ में रखे हैं टू अंडरस्टैंड अल्कोहल वर्सेस अल्कीन विच वुड गेट प्रोटोनेटेड एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म करस्पॉन्डिंग टू दैट। गॉट इट? कोई डाउट यहां तक? Next, which combination of alkyl bromide and epoxide can be used to prepare the following product by addition of Grignard reagent derived from the alkyl bromide to the epoxide? This is the desired product, a 2-degree alcohol, which I want to prepare from the combination of alkyl halide and epoxide, where this alkyl halide is to be converted into Grignard. तो हर एक में अल्काइल हैलाइड का ग्रेगनार्ड बन रहा है और वो इपॉक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। जनरलाइज करूं तो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ RMgX विथ एन इपॉक्साइड। व्हाट कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म you think over here? SN2. SN2, and this is the ring opening mechanism. Correct? So SN2 or ring opening, because Grignard would always break down to give you a carb, a 9, which acts as a very strong nucleophile and a base. तो एज अ न्यूक्लियोफाइल इट कैन अटैक द इपॉक्साइड। अभी अगर नॉन सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड है तो कहीं पे भी अटैक करो, प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड कर लिया, जैसे एक तरफ मैंने 2 मीथाइल लगा दिया, तो अब ये कार्बन आयन एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, विच इज डिसाइडेड बाय SN2 mechanism, and as SN2 it will attack the non-substituted less hindered carbon। तो यहां पर और रिंग ओपन होगा यहां से। अब प्रोडक्ट लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज R बॉन्डेड टू द CH2 वाला कार्बन, एंड दिस इन टर्न इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 2 methyl ऊपर नीचे, एंड देन द O नेगेटिव विल ग्रैब द H प्लस, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर इस तरह का ये प्रोडक्ट बनता है।
This is the ring opening mechanism via SN2. Okay. अब फर्स्ट केस में आपका ये MgBr बन जाएगा, ये कार्बनाइन, और अटैक करेगा यहां पर. आर यू गेटिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट? चेक. This ring will be bonded to CH2, then a CH with a methyl and the OH. You don't have a CH with a methyl here, उसके बाजू वाले कार्बन पे, तो ये डिजायर्ड आंसर नहीं है. नेक्स्ट, यहां से अगर आप ग्रिग्नार्ड बनाओ MgBr, फिर ये तोड़ो कार्बनाइन और अटैक करो यहां पर, तो ये CH2, CH2, CH3 और OH मिल रहा है अभी. अरे अंडरस्टूड. हेलो. Yes, sir. अंडरस्टूड. तो ये आपका ग्रिग्नार्ड का कार्बनाइन है, SN2 मैकेनिज्म है, रिंग ओपनिंग कॉन्सेप्ट, एंड दिस विल बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन. ऑफ कोर्स बाकी ऑप्शन अगर आप देखोगे, इट विल नॉट गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट. नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज consider only one equivalent of Grignard reagent. What functional groups do you see in the substrate? एस्टर कीटोन. एस्टर एंड कीटोन. अब ग्रिग्नार्ड का एक ही इक्विवेलेंट है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? कीटोन. एंड कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड वुड गिव 3 डिग्री. अल्कोहल. तो यहां पर OH और मीथाइल आ जाएगा. फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया है. व्हाट डज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव? Acid and alcohol. Acid and alcohol by breaking which bond? असाइल ऑक्सीजन. तो ये असाइल ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन CO ग्रुप के साथ COOH बन जाएगा और दूसरी तरफ मिथेनॉल बन जाएगा. ठीक है. इज देयर एनी ओके, व्हाट शुड बी द आंसर? So the OH and the acid and the alcohol can react, no? करेक्ट, टू फॉर्म अ साइक्लिक एस्टर. इनफैक्ट ये लैक्टोन फॉर्मेशन रिएक्शन है, फेमस लैक्टोन फॉर्मेशन, लैक्टोन अ साइक्लिक एस्टर. तो आपके पास H प्लस है, एंड एसिड एंड अल्कोहल कैन गिव यू एस्टर एंड वाटर, where esterification में the OH of the carboxylic acid, H of the alcohol will eliminate to form water, एंड यहां पर आपको मिल जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड O के साथ यहां पर रिंग क्लोज और मीथाइल. तो ये लैक्टोन बन जाता है विच इज अ साइक्लिक एस्टर. सो आंसर साइक्लिक फॉर्मेशन अगर रहा कोई भी ऑप्शन में, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा फेवरेबल होता है. मतलब एक एजुकेटेड गेस करना है, आपके पास टाइम नहीं है, 4 ऑप्शंस है और एक में साइक्लिक रिंग है, मोस्ट प्रोबेबल है कि वो वाला आंसर होगा. 99% प्रोबेबिलिटी है. ओके, मतलब इन केस टाइम ना हो तो, अदरवाइज चेक करके यू कैन वेरीफाई whether that particular cyclic ring formation is possible or not. अब next, product Y and Z of the above reaction respectively are. काफी अच्छा रिएक्शन. फिनॉल के साथ NaOH CO2 H प्लस X. ऑफकोर्स ये तो फेमस रिएक्शन है, कॉल्ड
whole base. whole base, which will give you salicylic acid. तो ऑर्थो पे COH आ जाएगा। अब वहां से दो रिएक्शन दिया है, एक में मिथेनॉल H प्लस है और दूसरे में असाइल क्लोराइड है। आर द प्रोडक्ट्स गोइंग टू बी सेम या डिफरेंट? Two very, very important reactions are So different. different. What is the first reaction? Which functional group will react and which reaction will happen? So esterification. Esterification. तो यहां पर एसिड एंड अल्कोहल इन H प्लस अभी अभी हमने किया एस्टरिफिकेशन। तो फिनोलिक OH एज इट इज रहेगा एंड यूल गेट एन एस्टर ओवर हियर COOCH3। ठीक है, इसको सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट, इसी को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी बोलते हैं बाय द वे। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, मिथाइल सैलिसिलेट। एंड दूसरे केस में व्हाट विल हैपन? Again ester, right? But with OH. हाँ, अगेन एस्टर, बट OH का HCl के साथ निकलेगा। ये असाइलेशन होगा एक्चुअली। प्रोडक्ट एस्टर है बट एस्टरिफिकेशन नहीं। ऊपर वाला रिएक्शन इज एसिड एंड अल्कोहल गिविंग एस्टर एंड वाटर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। नीचे वाला इज द असाइलेशन। तो पैन, पैन याद है? पैन, फिनॉल, एनिलीन एंड नाइट्रो डू नॉट अंडरगो FC alkylation होगा शायद। FC अल्काइल और असाइलेशन। तो उसमें अगर फिनॉल का या फिर एनिलीन का असाइलेशन करते भी है तो OH ऑफ H ऑफ OH एंड NH2 का H असाइलेशन करता है और यहां पर आपका असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है और ये अपना फेमस प्रोडक्ट हो गया कॉल्ड एस्पिरिन। तो आंसर बी है, बट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अच्छा, इसके साथ में मैंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था। ये दोनों एस्टर ही है, OCOCH3 वर्सेस जो सैलिसिलेट में बना है वो COOCH3 है। अब अगर इसका शान रिएक्शन करे फर्स्ट केस का, तो द इलेक्ट्रोफाइल विल सब्स्टिट्यूट एट Para. पैरा, बिकॉज ये फिनॉक्साइड जैसा है बट ये अपना नॉर्मल एस्टर। इसको इनफैक्ट मैंने नाम भी दिया था, इसको क्या बोला था? उल्टा एस्टर, एंड दिस इज नॉर्मल एस्टर। एस्टर में बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हमेशा एस्टर R and R dash cannot be interchanged. If they are interchanged, नाम चेंज, स्ट्रक्चर चेंज, सब कुछ चेंज। तो यहां पर OP डायरेक्टिंग होगा बट ये वाला एस्टर मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो इससे कनेक्टेड आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड थर्ड केस, मान लो आपके पास यहां फिनाइल है, फिर एक एस्टर है और यहां पर भी फिनाइल है और यहां पे कोई भी शान रिएक्शन कराए तो विच रिंग विल गेट सब्स्टिट्यूटेड? फर्स्ट और सेकेंड? ये भी So BYQ है। the second one, right? सेकेंड वन, एंड दैट एट द पैरा। तो कोई भी शान रिएक्शन कर, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर एंड दैट इज योर आंसर। दिस इज सिमिलर टू CONH वाला ग्रुप ऑल्सो। ये PYQ था आपका एक। इस क्वेश्चन से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। सैलिसिलिक एसिड के दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, अगेन अ गुड क्वेश्चन, स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिलेटेड। फर्स्ट रिएक्शन इज
methyl cyclohexene. What is the first reaction? HB. HBO. तो OH कहाँ जाएगा? ऑन द मिथाइल वाला कार्बन या बाजू में? बाजू में. सर बाजू है. बाजू में. ये मिथाइल और सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा. व्हाट इज द नेक्स्ट रिएजेंट? टोसाइल क्लोराइड. टोसाइल क्लोराइड. मतलब पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो OTS आ जाएगा. एंड नेक्स्ट रिएक्शन SN2. SN2. Product will have methyl and iodine आजू बाजू. तो ऑप्शन ए तो रूल्ड आउट है, ऑप्शन डी भी रूल्ड आउट है. अब बी और सी में हाउ डू यू डिसाइड? अब शुरू से शुरू करते हैं. SN2. हाँ, यूजिंग SN2 कॉन्सेप्ट. तो ई आपको प्रभाव. क्या लग रहा है, आंसर बी है कि सी है? बोल. अच्छा, HBO का एडिशन, डू यू रिकलेक्ट समथिंग विद Sin रिस्पेक्ट टू addition. दिस? Sin. हाँ, इट्स अ सिन एडिशन. मतलब जो मिथाइल और OH है, दे विल बी एडेड फ्रॉम द सेम साइड. मतलब अगर मान लो मैं इसको डार्क वेज पे करता हूं कंसिडर, तो ये भी मेरा डार्क वेज पे होना चाहिए. फिर जो OTS मिला वो भी आपका डार्क वेज पे ही होगा, बिकॉज यहाँ पे ओनली द H इज गेटिंग सब्सटीट्यूटेड बाय TS. सो ये इन्वर्जन नहीं कर रहा है, नॉर्मल अपना सब्सटीट्यूशन है. फिर जब I नेगेटिव आता है, तो ये I आपका डैश पे आ जाएगा और ये डार्क पे ही रहेगा. करेक्ट. सॉरी 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 सॉरी, कुछ तो कर. सॉरी, यहाँ पे जो HBO का सिन एडिशन है, दैट्स विद रिस्पेक्ट टू H एंड OH. मतलब आपका जो H और OH है वो आपका इस तरह से अटैच्ड होगा. मतलब दिस एडिशन विल बी अ सिन एडिशन. फिर आपका यहाँ पर मिथाइल जो है वो डैश पे है, एंड ये आपका डार्क पे है. तो फाइनल प्रोडक्ट जो है उसमें आपका मिथाइल और ये वाला H तो फिक्स है, बट जो OTS की जगह पे I आएगा वो आपका इस तरह से बॉन्ड होगा. मतलब योर I एंड मिथाइल बोथ शुड बी ऑन द सेम टाइप ऑफ वेज. सी प्रभाव. हाँ, मतलब या तो दोनों डार्क, अगर मैंने यहाँ पे डैश से शुरू किया होता तो यहाँ पे डार्क मिलता, बट मैंने डार्क अज्यूम किया तो मुझे दोनों डैश पे मिल रहा है. तो कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों ग्रुप जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर कैसे हैं, तो दे आर ऑन द सेम वेज. दैट्स व्हाई आंसर इज सी. A very important concept of syn addition followed by SN2 together. Syn followed by SN2. Tosylation does not change stereochemistry. हाँ, ये डबल इन्वर्जन नहीं करना. अगर 2 बार SN2 होता तो डबल इन्वर्जन होता, बट टोसाइलेशन इज जस्ट एन इंटरमीडिएट जो स्टीरियोकेमिस्ट्री अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन तो इंटैक्ट है वहां पर. समझा ये कॉन्सेप्ट? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट, what is special about this? जेमिनल डायो 3 डिग्री. 3 डिग्री विसिनल. जेमिनल नहीं है, सब विसिनल. विसिनल है. पिनाको. पिन्नाकॉल. पिनाकॉल, पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट जैसा कॉन्सेप्ट.
तो सबसे पहला स्टेप अगेन विल बी प्रोटोनेशन एंड विच OH विल गेट प्रोटोनेटेड, लेफ्ट वाला या राइट वाला? Right. Of course, right, because it is giving you a benzylic carbocation. Is there a rearrangement possible? So OH. OH? कौन सा टाइप का रीअरेंजमेंट सोचेंगे, या होगा भी नहीं, होगा या होगा भी नहीं? Do you see any condition getting satisfied? So back bonding will happen, right? बट बैक बॉन्डिंग होने के लिए यहां से क्या रीअरेंज करेगा तू? इज देयर एनीथिंग टू रीअरेंज? Oh, yeah, nothing. नथिंग ना, H नहीं है, Hmm. बट और कोई कंडीशन दिख रहा है? So ring will expand? यस। ऑप्शन तीन, तीन ऑप्शन में आप देखोगे तो 6 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है क्लियरली आपको। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर रिंग एक्सपांशन थॉट प्रोसेस में तो आना ही चाहिए। एंड मैंने क्या बोला था, इफ देर इज अ 4 or a 5 membered रिंग with a plus external to the ring, think of ring expansion. That was a clear statement and the condition given. Correct. तो एक्सपांशन का कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको 1 2 3 रूल दिया था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 3 तोड़ो, 1 3 जोड़ो, एंड यू गेट अ 6 membered ring with the numbering always as 2 1 3। ठीक है, प्लस चार्ज आपका 2 पे ही आएगा, और 2 पे OH भी है, ले आ गया बैक बॉन्डिंग का रेजोनेंस ध्रुवित, Yes, sir. और 2 फिनाइल ग्रुप्स यहां पर। करेक्ट। अब इज देयर एनी फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल? So no, right? Back bonding is less. यस। सो अब यहाँ पे बेस्ट रेजोनेंस ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो डीप्रोटोनेशन कर। एंड पिनेकॉल पिनेकोलोन का मतलब ही क्या है कि जो पिनेकॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ कीटोन। लो आ गया अपना पिनेकोलोन। तो ये हो गया आपका कंपाउंड P। अब LiLH4 will reduce the ketone to a secondary alcohol। तो यहाँ पे OH एंड देन हीट H3PO4 क्या करेगा? विच मैकेनिज्म? E1. E1। तो अगेन थिंक ऑफ द कार्बोकटाइन एंड यू गेट द कार्बोकटाइन here plus and 2 phenyls। Is there a rearrangement possible now? Yes. Yes, via 1,2 phenyl. सो फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन भी पिनेकॉल पिनेकोलोन में डिस्कस किया हुआ है हमने, कि हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट के अलावा फिनाइल शिफ्ट भी होता है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर डीप्रोटोनेशन करेगा, एंड द डबल बॉन्ड विल बी बिटवीन द कार्बन्स विद 2 मिथाइल। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर केस ऑफ 2 मिथाइल्स विद अ डबल बॉन्ड वाला केस। यहाँ पे खाली MeMe था, राइट? सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पर MeMe की जगह 2 फिनाइल ग्रुप है। मतलब आप आंसर एक एजुकेटेड गेस करना होता, यू वुड हैव क्लिक दिस। नेक्स्ट, लिस्ट 1 सबस्ट्रेट O स्टार लेबल्ड ऑक्सीजन है, और लिस्ट 2 प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलाइसिस। सो खाली हाइड्रोलाइज करके प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। तो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन द P कंपाउंड? फंक्शनल ग्रुप एस्टर। और असाइल ऑक्सीजन तोड़ो, और यहां पर एस्टर का हाइड्रोलिसिस बेंजोइक एसिड और मिथेनॉल देगा। नेक्स्ट में इट्स एन ईथर,
How do we hydrolyze the ether? Is there any problem with this particular ether? अगर मेरे पास विनाइल है, ऑक्सीजन है और फिनाइल है, and if I do the hydrolysis, what are the products and which bond will break? Yes, anyone? What was the concept given for anisole का hydrolysis? क्या प्रोडक्ट मिलेगा? So phenol and methanol. And ऊपर के केस में So then you get phenol and vinyl alcohol. but then you are breaking the bond of oxygen and phenyl या oxygen and vinyl. चलेगा क्या कि कोई प्रॉब्लम है? अच्छा मुझे बता, वाह वाह वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना रे. एनीसोल विथ एच आई का क्या कॉन्सेप्ट था? इफ आई यूज एच आई इन एक्सेस एंड हीट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? फेमस एग्जाम्पल एनीसोल विथ एच आई. phenol and methyl iodide. Always phenyl and methyl iodide, phenol and methyl iodide. एंड फर्दर ये फिनॉल का बेंजीन और वो बॉन्ड टूटता है क्या? No, sir. नहीं ना. तो यहां पर आपका प्रोडक्ट होगा फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड. बहुत फेमस एस्टर का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. कुछ भी, सॉरी एस्टर नहीं, ईथर का. ईथर का. ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस वाले कॉन्सेप्ट में विनाइल ऑक्सीजन का बॉन्ड या फिनाइल ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं ना. ये समझा? Yes, sir. तो यहां पे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं. वैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ विनाइलिक कार्बन ही तो है दोनों तरफ, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं. मतलब इसका तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं. अब आगे जाए तो ये वाले कार्बन पे लेफ्ट में भी ईथर है, राइट में भी ईथर है, तो दोनों सीओ बॉन्ड तोड़ना है. और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, दो पानी का मॉलिक्यूल्स यूज होगा. सेम चीज यहाँ पर ये दो बॉन्ड टूटेगा. दिस विल बी H विथ OH एंड यहाँ पे H विथ OH. और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद यू विल गेट अ पीएच CH विथ 2 OH ऑन द सेम कार्बन, जो कि एक जेमिनल डायोल बन गया. इमीडिएटली पानी निकाल दो एंड यू विल गेट बेंजल डिहाइड. और लास्ट केस में विच बॉन्ड टू ब्रेक? लेफ्ट वाला CO बॉन्ड या राइट वाला OPH बॉन्ड? CO bond. तो ये तोड़ेंगे. यहाँ पे एक टर्शियरी बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल बनेगा. अब मैच करते हैं. PHO star H is one of the product. In which option? S. So S will go with 1. No hydrolysis possible. जो कि Q में है, तो Q2 के साथ जाएगा. 2 मोल्स बेंजल डिहाइड के सिमेट्रिकल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, R3 के साथ जाएगा. अब एक ही बचा, DBE वैल्यू इज 5. तो बेंजोइक एसिड और मिथेनॉल. बेंजोइक एसिड में इसका DBE 4 है और कार्बोनाइल डबल बॉन्ड का 1, यानी इसका DBE 5 मैच हो रहा है. 4 2 3 1 इज द आंसर, ऑप्शन C.
So this question cleared the concept of the hydrolysis of ester and hydrolysis of ether. एस्टर में असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है, ईथर में आपका CO बॉन्ड ब्रेक करता है, एंड बोथ साइड CO बॉन्ड कैन ब्रेक जस्ट प्रोवाइडेड कि द ग्रुप्स आर नॉट वाह वाला ग्रुप्स। वाह वाले ग्रुप है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, बस इतना कॉन्सेप्ट था। Am I clear on this? चलो अभी आगे। How many out of the following are soluble in aqueous NaHCO3? What is this question indirectly related with? Acidity. Acidity। और NaHCO3 के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है पहले वो बता दो। So acids and trisulfenols. Acids and tri-substituted phenols like picric acid। अच्छा डाइनाइट्रो वाला करेगा कि नहीं? Yeah. यस, डाइनाइट्रो ट्राइनाइट्रो वो दोनों करते हैं। अच्छा सल्फोनिक एसिड करेगा NaHCO3 के साथ रिएक्ट? COH से स्ट्रॉन्गर होता है सल्फोनिक एसिड या वीकर? Stronger. ऑफ कोर्स, बिकॉज ये सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है, यानी SO3H COOH एंड डाइनाइट्रो या ट्राइनाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो NaHCO3 के साथ याद रखो। तो कितने आंसर हो गए इधर? यस, नो, ये एसिड ही नहीं है, नो, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड यस, ये एनिसोल है नो। तो 3 इज द आंसर। Next, when all stereoisomers of given compound react with excess of periodic acid, X moles of formaldehyde will be formed. Value of X is, पहले तो periodic acid कौन से बॉन्ड को तोड़ता है? CC. CC बॉन्ड ऑफ Alcohol and aldehyde ketone. glycols, CC bond of the glycols, and even carbonyl with the adjacent carbon पे OH, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो ये HiO4 का बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो ये वाला CC बॉन्ड आपका ग्लाइकॉल है, ये भी ग्लाइकॉल है, ये भी ग्लाइकॉल है, एंड ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये अल्डिहाइड है, तो ये भी टूटेगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कितने मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम हुए? फॉर एवरी ब्रेकडाउन और एवरी क्लीवेज देयर इज 1 HiO4 यूज्ड। अब द अल्डिहाइड periodic acid by the way is a mild oxidizing agent, so the aldehyde at the top will oxidize to ये बायोमोलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट है। The aldehyde will oxidize to Formic acid. Yes, अगर CHO है तो COOH, तो इस केस में ये कनेक्टेड है, मतलब आपका फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। फिर जब ग्लाइकॉल का CC बॉन्ड टूटता है तो यहां पर डबल बाल ऑक्सीडेशन होता है। तो think of it as one time the alcohol will change to carbonyl, another time that carbonyl will oxidize to acid. मतलब even this cleavage will give you acid, even this will give you acid, and this cleavage will also give acid. यानी 1, 2, 3 and 4, ये 4 moles formic acid के बन जाएंगे। And if you have a primary alcohol group, it will just oxidize once, क्योंकि ये एक ही बार क्लीवेज हो रहा है, and this will give formaldehyde। तो ये दो चीज है कि aldehyde group will oxidize to acid, primary alcoholic group will change to formaldehyde। इसके 5 प्रोडक्ट्स ये मिलेंगे, 4 moles of formic acid, 1 mole of formaldehyde। अब क्वेश्चन पे चलते हैं।
जब सारे स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HiO4 जो 4 मोल्स कंज्यूम कर रहा है, X moles of formaldehyde will be obtained. Now, how many stereoisomers we can have for this compound? 8. 2 raised to 3. And for every stereoisomer, you are getting one formaldehyde. So X moles of formaldehyde can be obtained. Answer will be every mole 1 formaldehyde. Answer will be 8. Right? Next. Which functional group will get affected with dichromate Alcohol. and will oxidize to? Ketone. And ketone के बाजू में अगर COH है, Beta what is keto this acid. famous compound? बीटा कीटो एसिड. आगे हीट दिया होगा तो HND का oxidation. and the answer will be A. Again, a very, very important reaction. Beta keto acid on heating undergoes a decarboxylation, very, very fast reaction, and eliminates the COH group to form a ketone. Which of the following ketones has the largest equilibrium constant for the addition of water? Hydration सबसे fast किसका होगा? Is determined by H bonding. ना Carbocation stability. नो कीटोन का रेट ऑफ रिएक्टिविटी कार्बोनाइल का रेट ऑफ रिएक्टिविटी वाज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? Garibi. Of alpha. हाँ, गरीबी ऑफ Carbonyl. Carbonyl. कार्बोनाइल कार्बन. तो अब चेक कर कौन सा कार्बोनाइल कार्बन सबसे ज्यादा गरीब होगा. दैट्स योर आंसर. बोल. नाइट्रो वाला ना. C. बस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो. खाली कार्बोनाइल सी लार्जेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब वाटर एडिशन सबसे फास्ट किस में होगा, यानी रेट की बारे में बात कर रहे थे. और रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोनाइल का इज डिपेंडेंट ऑन डेफिशिएंसी. और इसका पूरा ऑर्डर भी मैंने दिया हुआ है. फॉर्मल्डिहाइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, फिनाइल वाला कीटोन एंड डाइफिनाइल कीटोन. एंड अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स है फिनाइल का, देन EWG इंक्रीज करेगा, ADG डिक्रीज करेगा. दैट वाज द एंटायर पेज सिनॉप्सिस गिवन. Consider the following sequence of reaction. You have an unknown compound X with OH minus giving you Y and propionate, and Y का एक sequence दिया हुआ है to give you a thalic acid, metathalic acid. Okay. कंपाउंड X. सबसे पहले देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए. आपको X के बारे में कुछ नहीं पता. व्हाट शुड यू थिंक? DU. DU. एंड कैलकुलेट करो DU ऑफ X कितना आ रहा है. 5. 5. अब चेक कर चारों ऑप्शन में फर्स्ट वाले का DU कितना है. सबका 5 है. सबका 5 है तो DU से काम नहीं चलेगा. तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या सोचोगे. सबस्ट्रेट यानी ऑप्शन के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है. चेक कर फंक्शनल ग्रुप. एस्टर. चारों में एस्टर है. मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि X एक एस्टर है और DU इक्वल टू 5. इसका सेटिस्फाई भी हो जाता है क्योंकि 4 बेंजीन में जाएगा और एक एस्टर के फंक्शनल ग्रुप में जाएगा. तो इतना क्लियर है. इससे हमें थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है. अब रिएक्शन को कनेक्ट कर. एस्टर का OH माइनस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है ये. Saponification. सुपर. सेपोनिफिकेशन. और एस्टर जब सेपोनिफिकेशन करता है तो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं. ठीक है, तो जनरल रिएक्शन बताता हूं. RCOOR डैश. व्हाट आर द 2 प्रोडक्ट्स ऑफ सेपोनिफिकेशन.
Alcohol and salt of acid. तो सॉल्ट बनता है आर वाला और अल्कोहल बनता है आर डैश वाला, आर एंड आर डैश नेवर टू बी इंटरचेंज्ड। तो ये आपका कनेक्ट हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहां पर आपको बोला है कि वाई तो अननोन है, बट दिस इज प्रोपियोनेट, मतलब आपका आर जो है वो इथाइल है, क्लियर। अरे बोलो, Yes, sir. इतना क्लियर हो गया। अब कार्बोनाइल के साथ इथाइल इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो डी और सी तो रूल आउट हो गया। समझा रोलिंग आउट टेक्निक? अरे बोलो। Yes. ठीक है, अब ये वाला असाइल ऑक्सीजन तोड़कर अल्कोहल मिल गया मुझे, रादर इस केस में ये फिनॉल बोल दूंगा मैं, और ये वाला अल्कोहल बोल दूंगा। ठीक है, तो मुझे वाई मिल गया, राइट। अब KMnO4OH माइनस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दो एसिड मिल रहा है मेटा पे, मतलब वो दो ग्रुप मेटा पे होना चाहिए। अगेन गड़बड़, दोनों मेटा पे है। बट वो दोनों COH में कन्वर्ट होने चाहिए। अब क्या मेरा फिनॉल ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। No. नो। तो ए रूल आउट कर सकते हैं। तो चेक करो बी। बी में मेरा प्राइमरी अल्कोहल है क्या ना, प्राइमरी अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड। अरे हाँ Yes. ना, बराबर। तो ये कौन सा रिएक्शन है, आपको समझ में आ रहा है तो? एसिड्स का सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, अल्काइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 always gives you benzoic acid irrespective of Size of alcohol. साइज ऑफ द अल्काइल। तो ये भी COH, ये भी COH, मेटाथैलिक एसिड बन गया। ऐसे एग्जाम्पल भी दिए हुए थे। ये क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक अबाउट द सीक्वेंस। जब बहुत सारी चीजें अननोन हो तो आपको ऑप्शन से ही क्लिक करना पड़ेगा। पहले हम DU से चेक करेंगे, लेकिन DU से काम नहीं बना तो फंक्शनल ग्रुप। एक बार फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया तो रिएक्शन कनेक्ट करो। रिएक्शन कनेक्ट करने पर आपको कुछ तो इंफॉर्मेशन मिल गया, जैसे हमें आर मिल गया यहाँ पर, एंड देन उस आर से यू कैन रूल आउट द ऑप्शंस एंड गेट द फाइनल आंसर बेस्ड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट गिवन। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? कीटोन प्लस बेंजल्डिहाइड एंड NaOH हीट। व्हाट Aldol रिएक्शन टू to थिंक? benzene. तो डू आई इवन नीड टू डू द मैकेनिज्म हियर? Alpha beta unsaturated. एंड द आंसर इज C. सी। मतलब एक ही ऑप्शन में अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो मेहनत भी नहीं करना है। करेक्ट। अच्छा, मान लो दो ऑप्शन में ऐसा होता तो इसका शॉर्टकट क्या दिया था अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट का? विच विल बिकम द सबस्ट्रेट? Aldehyde. द बेंजल्डिहाइड, बिकॉज बेंजल्डिहाइड में अल्फा एच है ही नहीं, तो इट हैज टू बिकम द सबस्ट्रेट। ऑप्शन नहीं है आपके पास। और रिएजेंट में आप साइक्लो पेंटेनोन करोगे। क्या शॉर्टकट था इसका? Remove the two alpha H and the double bond O. करेक्ट, ऑक्सीजन ऑफ द सबस्ट्रेट निकालने का और दो हाइड्रोजन इसका निकालने का और दोनों को डबल बॉन्ड से ज्वाइन करने का। चेक, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया है ये। और अगर अल्डोल प्रोडक्ट दिया हुआ है तो बीटा पे ऑक्सीजन डाल, अल्फा पे H2 डाल टू वेरीफाई क्या हमने सही सोचा है। एंड यस, तो दैट आर द टू वेज अल्डोल के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल ट्रिक गिवन। Most appropriate sequence of the reactions for carrying out the following conversion. Bicyclo 6,6 converted to bicyclo 7,5 combination.
Per acid H plus zinc HCl, KMnO4 NaIO4 and Wolff-Kishner. Then KMnO4 H plus zinc HCl या फिर ozonolysis NaOET and then the Wolff-Kishner. ओके, पर एसिड जो है व्हाट डज इट डू टू द अल्कीन? Syn addition of like sorry, anti-addition of Bayes test. यस, मतलब टू कन्वर्ट दिस अल्कीन टू अ डायोल, मतलब दोनों तरफ OH OH लग जाएगा एंड एंटी एडिशन होगा, द OH विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड्स. और फिर जिंक HCl, डज इट रिएक्ट विद द ग्लाइकॉल्स और द अल्कोहल्स? तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना फर्स्ट केस में, वो आपका दो साइक्लिक रिंग, यहाँ पे OH अगर डार्क पे है तो यहाँ पे OH डैश पे, दिस इज द प्रोडक्ट. और मान लो अगर HCl रिएक्ट भी कर लिया तो यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड रिंग का 7-5 कॉम्बिनेशन तो नहीं होने वाला. तो आपको बेसिकली रिंग तोड़ के रिंग को एक्सपांड भी करना है या रीसाइज करना है. KMnO4 क्या करेगा? Syn addition. हाँ, अब ये कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 है कि हॉट, वो नहीं दिया है. अगर ये अपना बियर्स टेस्ट है तो सिन एडिशन OH OH कर लेगा और फिर NaIO4, ये आपका पर आयोडिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट, तो वो विसिनल ग्लाइकॉल को तोड़ता है ना. मतलब आपके पास यहाँ पे ये रिंग है, ये OH है और ये OH है, अब ये सिन वाला प्रोडक्ट हो गया. अब NaIO4 इस पर्टिकुलर CC बॉन्ड को तोड़ सकता है एंड तोड़ के दिस पर्टिकुलर कार्बन विल चेंज टू, अच्छा बताओ मुझे, इस कार्बन पे H है क्या जहां पे ग्लाइकॉल बना है? इज देयर अ H? C बनाओ, बनो मत. No. नो. मतलब यहां पर बेसिकली ये रिंग जब CC बॉन्ड तोड़ेगा, विल फॉर्म अ कीटोन लाइक दिस. CC तोड़ दो, कीटोन बना दो. और फिर आपका ये वाला वॉल्फ किश्नर इस पर्टिकुलर कीटो को CH2 में बदल देगा एंड यू विल सिंपली गेट अ वेरी वेरी बिग रिंग जो कि एक्चुअली स्टेबल भी नहीं है. 10 कार्बन का रिंग बन जाएगा. वॉल्फ किश्नर रिडक्शन. मतलब आपका ABC ऑप्शन वैसे रूल आउट हो गया. अब सोचो अगर थर्ड, सॉरी, डी वाला ऑप्शन Me2S इज डाइमिथाइल सल्फाइड, ये ओजोनोलाइसिस का एक रिएजेंट है, तो इसमें भी डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और ये सिमिलर कीटोन देगा जो हमारा इसमें भी आया था. बट आगे आपको NaOET दिया है, ये क्या करेगा? डाई कीटो है, NaOET है, क्या सोचोगे? डाई कीटोन, दो कीटोन है, NaOET. व्हाट इज NaOET बाय द वे? Strong base. तो कोई रिएक्शन नहीं सोच रहा है? Aldol. इंट्रामोलिकुलर अल्डोल. और ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये मान लो सबस्ट्रेट का ऑक्सीजन है और ये आपका H2 रिएजेंट का अल्फा H है. अब इस पे जब आप CC डबल बॉन्ड करोगे तो आपका स्ट्रक्चर में देखो, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका एक 7 और 5 मेंबर का कॉम्बिनेशन जो एक्सपेक्टेड था मिल गया और यहाँ पे कीटो है. और फिर आप वॉल क्वेश्चनर करोगे तो ये वाला
डबल बॉन्ड हो निकल जाएगा WKR से. आर वी गेटिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट? ये आपको ऑप्शन से ही निकाल के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. दिस इज द आंसर. समझा? Yes, sir. Okay. Correct product obtained in following reaction. One equivalent of methyl chloride पूछा है. So ये one equivalent दिया है. What is LDA? Lazy base. Yes, lithium diisopropyl amide. सोडामाइड का ही बड़ा भाई बोल सकते हो, but because of the diisopropyl, it is actually a lazy base. So as a base, what will happen here? Abstract the H plus. Of the Alpha carbon. to form a So like enolate. carbon ion enolate, yes. And then 1 mole of methyl chloride. SN. यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा. अब अगर दो इक्विवेलेंट दिया होता तो आंसर ए होता, एक इक्विवेलेंट दिया तो आंसर सी है. ये तो रूल्ड आउट है क्योंकि मेटा पे, ये भी रूल्ड आउट है क्योंकि ईथर बन रहा है. वैसे ए और सी दोनों करेक्ट है, लेकिन वन इक्विवेलेंट बोलकर सी विल बी द आंसर. नहीं दिया होता, एक्सेस दिया होता तो ए वुड बी द आंसर. क्लियर? Which reaction is this? Ketone plus 2 degree amine. Beckmans. नहीं. Beckmans is Oh, amide sorry, that's convert. oxime. हाँ. This is enamine reaction. ये भी ज्यादा डिटेल में है नहीं, जस्ट एक PYQ अगेन रिलेटेड था इससे, सो आई हैव टेकन अप. व्हेनेवर अ कीटोन, सी प्राइमरी अमाइन से तो स्किफ्स बेस या इमाइन बनता है, प्राइमरी इमाइन, अल्काइल इमाइन. But when a aldehyde or ketone reacts with a 2 degree amine in the presence of acid, then oxygen of the ketone, secondary amine का H and alpha कार्बन का एक H, ये एलिमिनेट करके पानी निकालता है. एंड वाटर के लॉस के साथ ये एक अनसैचुरेटेड अमाइन बनाता है. अब यहां पर इसका सिंपल तरीका है, यू शुड हैव द डबल बॉन्डेड कार्बन एंड बॉन्डेड, जैसे अपन इनॉल कैसे लिखते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एंड OH, वैसे यहां पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आपको नाइट्रोजन देखना है. तो क्या आंसर होगा? So B. बी, अनसैचुरेटेड. सॉरी, ये अल्फा H नहीं, माय बैड, ये वाला अल्फा H. तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड उसके साथ नाइट्रोजन कनेक्टेड. मतलब खाली यहां पर ये वाले सेकेंडरी अमाइन का H निकाल के इस वाले ऑक्सीजन की जगह पे डाल देना है विथ अ डबल बॉन्ड इन द रिंग विच इज कॉल्ड द इन अमाइन. तो इन अमाइन मतलब डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में होना चाहिए. ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, रूल्ड आउट है. ये इन ही नहीं है तो रूल्ड आउट है. यहां पर कहां पर डबल बॉन्ड है वो इंपॉर्टेंट है, तो इधर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रूल्ड आउट है. अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द कीटोन इन डबल बॉन्ड इधर बनना चाहिए. तो जस्ट रिमेंबर दिस इन अमाइन कॉन्सेप्ट. नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन आर. इपॉक्साइड ग्रिग्नार्ड कंज्यूम करता है. Yeah. यस. कीटोन, Yeah. असाइल क्लोराइड, Yeah. Yes. फिनॉल, Yeah.
अब फिनॉल का तो ग्रिग्नार्ड के साथ डायरेक्टली बेंजीन बन जाएगा, सॉरी RH बन जाएगा और OMgx, मतलब कंज्यूम करता है। असाइल क्लोराइड कितना ग्रिग्नार्ड कंज्यूम करेगा? So 2. 2 क्योंकि असाइल से कीटोन, कीटोन से टर्शियरी, कीटोन एक 1 ही करेगा टर्शियरी अल्कोहल, और इपॉक्साइड भी एक बार CO क्लीवेज करेगा, मतलब द आंसर विल बी टी। ठीक है, फ्यू मोर क्वेश्चंस। Among the following given compounds, decreasing order of the acidity, quickly कौन सा concept to apply? So Sir, so which is the best? oh, 4, then 2. yes, ortho substituted acid is very strong, then 1 3 में 1 yes, because OH at the para has plus R minus I. weakest होगा third. 4 2 1 3 is the answer. If you pick up the concept correctly, you should get the answer. ठीक है, this is okay. Let me take this. Number of compounds which undergo stable hydrate formation. अब ये भी एक PYQ से रिलेटेड था। कौन स्टेबल हाइड्रेट बनाता है इनमें से? Plural. क्लोरल तो ऑफ कोर्स आंसर है, क्योंकि ये तो बताया हुआ है। इज द फर्स्ट वन, और कैन द फर्स्ट वन फॉर्म अ स्टेबल हाइड्रेट? Yes, sir, H bonding. यस, ये सेम सिमिलर PYQ था 4 मेंबर्ड रिंग के साथ। क्या होता है यहां पर, अगर बीच वाला कीटोनिक ग्रुप हाइड्रेट बना देता है तो दिस H एंड O इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाने से स्टेबल हो जाएगा। क्लोरल तो था ही। अब इनमें द साइक्लोप्रोपेनोन का हाइड्रेट इज ऑल्सो स्टेबल, बिकॉज यहां पर दिस कार्बन विच इज sp2 changes to the carbon which is sp3, and this actually stabilizes the structure better than the cyclopropanone. तो आप अपने सिनॉप्सिस में ऐड कर लो स्टेबल हाइड्रेट क्लोरल के अलावा, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट अटैच टू एनी रिंग, बीटा गामा डाइकीटो या ट्राइकीटो बोल सकते हो इसको, एंड साइक्लोप्रोपेनोन, बस ये 3 ही स्ट्रक्चर है जिसके हाइड्रेट स्टेबल होते हैं। तो अपने एड ऑन में ये निन हाइड्रीन का स्ट्रक्चर है। कहां पे यूज किया था निन हाइड्रीन? Proteins. टेस्ट फॉर द प्रोटीन्स, तो उसी का ये कॉन्सेप्ट है निन हाइड्रीन का, एंड प्लस साइक्लोप्रोपेनोन ऐड कर देना, ये 3 होगा आंसर। This is simple. What is NaOBr Can you go back to the responsible last for? slide? So thank you. Yeah. What is NaOBr responsible for? Happy birthday. Happy birthday. So the amide will change to, ये निकल जाएगा। Then the chloroform KOH, Isocyanide. isocyanide, and then उसका reduction gives 2 degree Mi. RNC will give RNHCH3। तो इसका HR रिएक्शन करके कॉन्सेप्ट बताया था, तो सिंपल सीक्वेंस टू अंडरस्टैंड। Now amines के related basic strength, very famous amines are listed over here. Best Guanidine. Vanillin, guanidine, then amidine, amidine, between 1 to 1. 1, because on sp3 nitrogen less electronegative better, and ये vinylic जैसा structure least। 4 3 1 2 is the answer। Famous order। Most acidic species is, अब इसको क्रैक करने का सिंपल तरीका क्या है? Does it B because anti-aromatic?
करेक्ट, मतलब मोस्ट एसिडिक इज इक्विवेलेंट टू अ लीस्ट बेसिक। मतलब यहां पर आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो है H निकालने के बाद नाइट्रोजन विल बी इन कॉन्जुगेशन टू टू डबल बॉन्ड्स एंड ऑल्सो, अच्छा ये एंटी एरोमेटिक फंडा नहीं है समन, So दिस विल then, एक्चुअली फॉर्म दी पाइरोल, एंड पाइरोल की बेसिसिटी बहुत बेकार है बिकॉज नाइट्रोजन इज इन कॉन्जुगेशन। इनफैक्ट ये तो अरोमेटिक है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड विद द कॉन्सेप्ट। okay, thanks. ओके, मोस्ट एसिडिक मतलब लीस्ट बेसिक सोचना है। अगर ये अपने नॉर्मल एसिड्स होते तो सर इफेक्ट और अपना RI ट्रिक जो मैंने दिया है वो अप्लाई करो, बट क्योंकि ये अमोनियम आयंस थे इसलिए मोस्ट एसिडिक आइडेंटिफाई करने के लिए लीस्ट बेसिक, तो सब में से H+ निकाल दो एंड देन यू फाइंड द बेस का स्ट्रेंथ। इनफैक्ट द फर्स्ट वन इज योर पाइरोलिडीन, मतलब नॉर्मल विदाउट डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये आपका पाइरोल है, ये पाइरिडीन होगा, और ये पाइरिडीन के साथ NME2 ग्रुप है जिसमें लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन। तो लीस्ट बेसिक में दो डबल बॉन्ड्स विल बी वेरी वेरी बैड। So, Hmm. so in A, why is there a plus on the nitrogen? बिकॉज दे आर ऑल अमोनियम आयंस। इसको So, डीप्रोटोनेट करके आपको बेस सोचना है, सब में प्लस नाइट्रोजन पे ही है ना। so but in the first one, there are only 3 bonds, right, connected to nitrogen. हाँ, So एक और H दिस, होना चाहिए और यस यस यस, वो मतलब इट्स लाइक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में है ना, नहीं बना, ये स्पेशली अच्छा, प्रोटोनेटेड वाला H है, एंड देयर विल okay, बी yeah, H जो दिखाया नहीं है। yeah, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट इंक्रीजिंग बेसिसिटी, हाउ डू यू कंपेयर हियर, थॉट प्रोसेस। So 2, 3 on. 2 3 1, So and then arise. हाँ करेक्ट। तो सबसे पहले आप एलिफेटिक अरोमेटिक चेक करोगे तो एलिफेटिक ज्यादा बेसिक होना चाहिए, तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में लीस्ट कर दिया है, और इसमें भी फर्स्ट है, मतलब ये ऑप्शन रूल्ड आउट है। अराइल अमाइन में नाइट्रो विल इंक्रीज और डिक्रीज, Decrease. Decrease. क्योंकि ADG बढ़ाएगा, AWG घटाएगा, तो इन तीनों में भी क्लियर है। तो मिथॉक्सी बेटर होना चाहिए, फिर नो ग्रुप, और फिर नाइट्रो, तो आंसर डी हो गया। क्लियर, that's it with this, lot of concepts which are important, we have discussed that, revise them properly, एंड कुछ एड-ऑन्स भी मैंने बताया जो कुछ PYQs में आ चुके थे, तो एक्स्ट्राज है, आने के चांसेस बहुत कम है because they were in the previous 2022 2021 PYQs, but still as just a safety, just go through these concepts, make a note of those important reaction का conditions, and that much is enough। बाकी तो जो अपन ने synopsis में किया है that is already important। Okay,